all the living human beings should have the sentiment for the other living creatures on the same planet. In this category we can keep animals as well, but there are very less number of the people who are having sentiments for the animal, especially for wild animals. All these wild animals are regarded just they are subjected to harm or to offense the human being, that's it. Means no one is considerate about it, like they can also have the feeling of dejection, alignment, they can also be depressed for some of the reason. So in this category if we fall, then one of the poet falls in this category, that was Leslie Norris, who has grabbed the attention of the people living in the same society, that the animal like tiger, that is regarded as a wild animal, they can also feel some kind of dejected feeling because of some reason. So this is the poem A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris from your main course book First Flight, we are going to cover in this video. Namaskar my all dear student of class 10, I am your English mentor, take you towards this poem, and we will definitely be considerate about the wild animals as well at the end of this पोम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कॉम्पैक्ट कोर्स सीरीज चल रही है, दैट इज स्पेशली डिजाइंड for you for the preparation of your upcoming board examination, and I am hoping that it is being it is proved very beneficial for you, because at this time, at the verge of your examination, all the value point that can be covered in less number of the time, and very means in the minutes, that is really beneficial for you. तो आज हम इसी कॉम्पैक्ट कोर्स सीरीज में एक पोम पढ़ते हैं, दैट इज A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Leslie Norris was a famous Welsh poet and short story writer. ये पोइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. He was born in 1921 in Wales. Leslie Norris had decided even at an early age that he would become a poet. Now, he was very much interested in poems, Dylan Thomas and Vernon Watkins. His first poem was published in 1938, but his first book, poetry, came out in 1943. In July 1942, Norris married Catherine, better known as Kitty. They moved to England and trained themselves to be teachers. He shot to fame with his first publication, Finding Gold. His works won various awards, including the Coleman Delhi Poetry Prize and Catherine Mansfield Memorial Award. लेस्ली डाइड इन 2006. तो इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हम पोइट बनेंगे, और अल्टीमेटली इन्होंने वही अपना सपना पूरा किया बाद में, और ये एक पोइट बने. पहले पोइट से पहले ये एक टीचर भी रहे थे, ठीक है. तो दो प्रोफेशन में ये रहे. इनको कॉलमन डेली पोइट्री प्राइज एंड कैथरीन मैन्सफील्ड अवार्ड मिला था. इनका जो मेन पब्लिकेशन है दैट इज फाइंडिंग गोल्ड. लिखना शुरू किया था इन्होंने 38 में, लेकिन उनका जो पब्लिकेशन है वो काफ़ी टाइम बाद पब्लिश हुआ था, दैट इज इन 43. तो इन्हीं की लिखी हुई आज हम एक पोम पढ़ेंगे. सेंट्रल आइडिया देखते हैं सबसे पहले पोम का. The tiger is a proud creature. It is a shame that such a powerful, agile and untamable animal should be caged in zoo. In his natural and wild habitat, he doesn't need the help of any kind to hurt for his food. तो यहाँ पे टाइगर के बारे में बताया गया कि कितना प्राउड क्रीचर है. प्राउड इज कॉल्ड मीन्स ही इज कैपेबल इनफ टू अरेंज ईच एंड एवरीथिंग फॉर इट सेल्फ. इस तरह का एक पावरफुल, इस तरह का एक एनर्जेटिक और अनटेमेबल इज कॉल्ड, जिसको आप टेम नहीं कर सकते, जिसको आप डोमेस्टिकेट या पैच नहीं बना सकते. इस तरह का जो जानवर है उसको केज किया जाना, ये बहुत शर्म की बात है जो जू में किया जाता है. इनका अपना एक खुद का नेचुरल हैबिटेट होता है. हैबिटेट इज कॉल्ड द लिविंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे ये रहते हैं. लिविंग एनवायरनमेंट जो एंटाइटी होती है, हैबिटेट, वो क्या होता है इनका, दैट इज फॉरेस्ट. ऑब्वियसली ये फॉरेस्ट में रहते हैं और उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि वो किसी भी तरह का अपना उनको हंट करके या उनको लाकर फूड दिया जाए. दे आर कैपेबल इनफ टू अरेंज देयर फूड देमसेल्व्स इन द फॉरेस्ट. His hunting of deer at the water hole may seem rather cruel. He hunts not for pleasure but for food. His presence in the natural habitat is necessary to maintain the balance of the food chain. Sometimes the tiger may stray into human habitation.
अब यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से टाइगर हैं वो हंट करते हैं डियर का, जो वाटर होल के पास आते हैं, पानी पीने आते हैं, तब उनका जो हंट करते शिकार करते हैं, उससे इनको बहुत क्रूअल समझा जाता है। बट ये अपने प्लेजर के लिए हंट नहीं करते हैं, इनको खाना चाहिए, ये तो इनका नेचुरल एंटाइटी है जिसके लिए इनको इस तरह से बनाया गया है। तो ये अपने खाने के लिए उनको हंट करते हैं। और ये जो इनकी प्रेजेंस है अपने नेचुरल हैबिटेट में, जो हमारा नेचर का बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। मीन्स एक लेवल के जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे लेवल को खाते हैं, फिर तीसरे लेवल के एनिमल्स को खाते हैं। इस तरह से हमारी जो फूड चेन होती है वो नेचुरल जो हैबिटेट है उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और टाइगर इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म में एक दूसरी चीज़ भी बताई गई है कि अगर टाइगर को देखा जाए कि वो ह्यूमन हैबिटेशन में हिस्ट्री कर रहा है ना, हिस्ट्री आप बोल सकते हो घूमना, ओके, बिना किसी की पर्पसलेस वॉक, तो वो उनका क्या भाई पर्पस होगा वहाँ पे, पर्पसलेस वॉक, वहाँ पे उनका घूमने का सिर्फ एक ही मतलब होगा कि भाई या तो उनको ट्रैप करके रखा हो या बाय मिस्टेक वो कभी आ गए हो ह्यूमन हैबिटेट में। तो इसका भी यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा कि कभी कभी उनको देखा जा सकता है कि हाँ वो ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ पे ह्यूमन रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया जो होता है वहाँ पे इनको देखा जा सकता है। ही ओनली डिस्प्लेस हिज स्ट्रेंथ एंड ferociousness, but he doesn't harm anyone till he provoked. Even in the cage, he ignores all those who come to the zoo to see him as entertainment. Like human beings, the tiger too loves the values of his freedom. He shows his anger, hatred, and even defiance by walking about in the rage in the cage. अब यहाँ पे बताया गया है कि वो जब ह्यूमन हैबिटेशन में आ भी जाते हैं तो सिर्फ अपनी पावर शो करते हैं, स्ट्रेंथ शो करते हैं, फेरोशियसनेस आप बोल सकते हो, अपना एक तरह से जो टेरर है वो शो करते हैं, ठीक है। वो किसी को हार्म नहीं करते हैं, ये ऐसा नहीं कि वो ह्यूमन हैबिटेट में आए और मारना शुरू और खाना शुरू, नहीं, वो ऐसा तब तक नहीं करते हैं जब तक उनको प्रोवोक नहीं किया जाता है। प्रोवोक इज कॉल्ड उकसाना, ठीक है, टू डू समथिंग मीन्स यू आर अगेन एंड अगेन पुटिंग द अर्ज, ओके, अगेन अगेन इस तरह की चीज़ें कर रहे हो जिससे आप उसको उकसा रहे हो। अगर इस तरह की चीज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो अटैक करेगा अपने डिफाइंड। अब यहाँ पर अगर वो केज में है तो वो इग्नोर कर देता है, जू में जब इनको रखा जाता है तो वो इग्नोर कर देते हैं, जितने भी आउटकमर्स होते हैं वो उनको एक एंटरटेनमेंट की चीज़ समझते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता है कि टाइगर इज इन द केज तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड teasing him by throwing so many different items towards him. उनको लगता है, टाइगर को भी ये चीज़ फील होती है कि हाँ वो ट्रैप्ड है, तो वो अभी पावरलेस है, और सभी लोग उसको एक एंटरटेनमेंट की चीज़ समझते हैं। बट हमको ये नहीं लगता कि वो भी हमारे लिविंग क्रीचर जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, टाइगर को भी अच्छा लगता है, वो भी प्यार करता है अपने फ्रीडम से। अगर हमको केज में डाल दिया जाए, 2 टाइम का खाना दिया जाए, मीन्स वी कैन लिव, हम लोग जिंदा रह सकते हैं, बट द स्माइल, द हैप्पीनेस, द सेटिस्फेक्शन, द कंटेंट, जो एक तरह से चार्म है जीने का, वो खत्म हो जाता है। बस हम लोग केज में पड़े रहेंगे और किसी के आश्रय पर रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वी आर नॉट हैविंग आवर ओन फ्रीडम, सेम एज विद द टाइगर। टाइगर को भी फ्रीडम नहीं मिल पाती है और ये उनको देखने को मिलता है, तब वो इस तरह का जो शो करते हैं एटीट्यूड, वो निकलता है एंगर फॉर्म में, हेट्रेड फॉर्म में, एंड डिफाइंस बाय वॉकिंग। डिफाइंस आप बोल सकते हो रिफ्यूज टू ओबे, रिफ्यूज टू ओबे, किसी भी बात को मानने से मना कर देना। ऑब्वियसली वो मना कर देते हैं, वो रेज में आ जाते हैं, रेज आप बोल सकते हो एंगर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं केज में जब होते हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी की फ्रीडम को छीन लोगे तो वो किस तरह का रिएक्शन शो करेगा, बहुत नेगेटिव, बहुत ही अनोइंग रिएक्शन शो करेगा। सेम ऐसे ही हमको टाइगर का देखने को मिलता है। तो इस फॉर्म में बेसिकली जो पोइट है वो हमको बताना चाहते हैं, मिस्टर नॉरिस, वो ये बोलते हैं कि जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में खुश रहता है, और वो इनडायरेक्टली हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है, लाइक टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस इन द नेचुरल लिविंग इन द नेचुरल हैबिटेट। अगर वो ह्यूमन हैबिटेट में आ भी जाता है तो भी वो किसी को हार्म नहीं करता जब तक उसको प्रोवोक नहीं किया जाता है, और जब वो केज में होता है वो अपना रिएक्शन शो करता है इन द फॉर्म ऑफ एंगर एंड अनॉयंस। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा नंबर 1, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. Stalks is called walks,
ठीक है, वो कहाँ टहल रहा है, वो टहल रहा है, विविड इज कॉल्ड डिफरेंट। टाइगर की स्ट्राइप्स होती हैं अलग अलग शेप की, अलग अलग लंबी छोटी, इस तरह की जो स्ट्राइप्स होती हैं, वो अपनी स्ट्राइप्स के साथ जो है वो केज में वॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपनी केज की तरफ थोड़े से स्टेप्स ले रहा, मतलब जो उसका केज है वो बहुत छोटा सा है, क्योंकि फॉरेस्ट जहाँ पे वो रहता है वो तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे तो वो जहाँ चाहे जा सकता है, लेकिन जो केज है उसका वो बहुत कन्फाइंड है, छोटा सा है, तो वहाँ पे बहुत थोड़ी ही देर वो चल पाता है, तब केज खत्म हो जाता है, अगर वहाँ चलता है तो स्टेप्स खत्म हो जाते हैं, फिर उसको वापस आना पड़ता है। जो उसके वेलवेट क्वाइट जो पैड्स हैं, पैड्स का मतलब है पॉज, ठीक है, जो उनके पॉज पंजे होते हैं, जो नीचे पंजे होते हैं, वो कैसे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट लाइक क्लॉथ। कौन सा क्लॉथ, वेलवेट। तो ये जो क्लॉथ है, वेलवेट क्या है, एक तरह का क्लॉथ होता है, एक तरह का फैब्रिक होता है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसके जो पॉज हैं, उसके जो पंजे हैं नीचे, वो बहुत सॉफ्ट हैं, ऐसा लगता है कि कोई कुशन है, कुशन के पैड हैं उसके, और उन्हीं पॉज से वो स्टेप्स ले रहा है, उस पिंजरे में टहल रहा है, इन अ क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड दिए गए हैं कि बहुत शांत है लेकिन लग रहा है कि उसके अंदर बहुत गुस्सा है। किस चीज़ का गुस्सा हो सकता है, कि उसको पिंजरे में ट्रैप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमको पोइट बताते हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक टाइगर है, लेकिन वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, वो जंगल में नहीं है, उसको कहाँ रखा गया है, उसको केज में रखा गया है, वो केज में घूम रहा है, केज में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसीलिए वो थोड़े से ही स्टेप्स ले पाता है, और अपने वेलवेटी सॉफ्ट पॉज से वो इधर उधर टहल रहा है। उसको देख कर लगता है वो शांत है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। स्टैंजा नंबर 2 देखो, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Now lurking is called hiding. तो वो क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पे बताते हैं, ये सेकेंड स्टेंजा में यहाँ पे पोइट कहाँ आ गए हैं, फॉरेस्ट में, यहाँ पे फॉरेस्ट का सीन बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा में जो टाइगर था वो केज में था, ठीक है, और अब जो सेकेंड स्टेंजा में जिस टाइगर की बात कर रहे हैं वो कहाँ है, फॉरेस्ट में है। तो टाइगर एक क्रीचर है, लेकिन पोइट ने उसमें डिफरेंस कैसे किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेजिडेंशियल प्लेस, कि वो कहाँ रह रहे हैं, लिविंग प्लेस कैसा है, उसके लिविंग प्लेस के वजह से उनके जो एटीट्यूड है, उनका रिएक्शन है, बिहेवियर, उसमें क्या बदलाव आता है वो बता रहे हैं। तो सेकेंड स्टैंजा में जो टाइगर उन्होंने बताया है वो कहाँ है, वो फॉरेस्ट में है, जो कि कहाँ पे छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है बड़ी बड़ी घास में, ठीक है, लर्किंग इन शेडो। शेडो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब वो छुपा हुआ है, वो उसकी शेडो दिखाई दे रही है, लंबी लंबी घास में उसकी शेडो दिखाई दे रही है, क्योंकि वो छुपा हुआ है, स्लाइडिंग यानी कि धीरे से वो लंबी घास में आकर छुप जाता है। क्यों छुप जाता है, क्योंकि वो जो लंबी घास का वहाँ पे जगह है, वो कहाँ पे है, नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब देयर इज अ वाटर बॉडी इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जिस तरह का थोड़ा सा पॉन्ड होता है या रिवर होती है, कोई भी वाटर बॉडी, स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, वो जहाँ पे एनिमल्स आते हैं पानी पीने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे जब कोई भी कौन आता है, प्लम्प डियर। प्लम्प इज कॉल्ड सॉफ्ट, फ्लैशी, ठीक है, बहुत ही ताज़ा बोल सकते हो, फ्रेश, इस तरह का गोलू मोलू सा जो हिरन है वो आता है, तो प्लम्प हम बोल सकते हैं फ्लैशी। जब भी कोई फ्लैशी डियर वहाँ पे आता है, और क्या क्या करने आता है, वो पानी पीने आता है, वहाँ से पास होता है, तभी वो जो टाइगर होते हैं वो वहाँ उस घास के पास, उस वाटर बॉडी के पास जो लंबी लंबी घास है उसके पीछे आकर छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं, बिकॉज डियर इज द मेन प्रे ऑफ टाइगर, ठीक है, वो उनका मेन शिकार होते हैं, वो उन्हीं को शिकार करते हैं, वो उन्हीं को खाते हैं। उनको पता है कि जो डियर हैं वो पानी पीने के लिए उस वाटर बॉडी के पास आएंगे, वहाँ पे जो लंबी लंबी घास है वो उसके पास छुप जाते हैं, जिससे कि जैसे ही वो डियर आए वो उसको अटैक कर सकें और उसको पकड़ कर खा सकें। तो सेकेंड स्टैंजा में जो पोइट है वो हमको कहाँ ले जाते हैं, फॉरेस्ट में। नाउ थर्ड स्टैंजा, he should be snarling around houses at the jungle edge, then baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now यहाँ पे he किसके लिए आया है, he आया है टाइगर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग आप बोल सकते हो रोरिंग साउंड, रोरिंग साउंड, एक तरह ये जो दहाड़ने की आवाज़ होती है, जिस तरह से दहाड़ते हैं वो साउंड।
अराउंड द हाउस। अब यहाँ पे क्या फिर से वो बता रहे हैं कि जो ये टाइगर है, जब ये कभी खुले में आ जाते हैं, अपने हैबिटेट से निकलकर ह्यूमन हैबिटेट में आ जाते हैं, तो वो अपनी बहुत ही रोरिंग साउंड दिखाते हैं अराउंड द हाउसेस। अराउंड द हाउसेस मतलब अब वो कहाँ आ गए हैं, ह्यूमन हैबिटेट में आ गए हैं, जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट में वो आ गए हैं, और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ वो शो कर रहे हैं बाय रोरिंग साउंड, बहुत तेज दहाड़ रहे हैं। और वो जो ह्यूमन हैबिटेट है वो कहाँ पे है, जंगल के किनारे है। मतलब जैसे ही जंगल की लिमिट खत्म होती है, वहाँ से रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाता है, तो कभी कभी वो अपनी नेचुरल हैबिटेट, अपने फॉरेस्ट से निकलकर वो ह्यूमन हैबिटेट में आ जाते हैं। वहाँ आकर वो जब दहाड़ते हैं, अपनी पावर शो करते हैं, किसको, अराउंड द हाउसेस, वहाँ पे घरों के चारों तरफ वो घूम रहे हैं और अपनी पावर शो कर रहे हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग इज कॉल्ड अनकवरिंग। उनके जो फैंग्स हैं, फैंग्स का मतलब जो उनके टीथ हैं, ठीक है, शार्प वाइट टीथ, शार्प वाइट टीथ, जो उनके दांत हैं वो कैसे हैं, अनकवर्ड हैं। हिज क्लॉज, यहाँ पे बताया कि जब वो दहाड़ते हैं तो उनके बड़े बड़े शार्प दांत दिखाई देते हैं। उनके जो क्लॉज हैं, जो पंजे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े नेल्स हैं, वो दिखाई देते हैं। एंड टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग इज कॉल्ड मेकिंग दैम अफ्रेड। विलेजर्स जैसे ही उस टाइगर को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा टेरराइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने रियल पावर, रियल स्ट्रेंथ बताया है, रियल रिएक्शन ऑन सीइंग अ टाइगर क्या होता है लोगों का, वो बताया है पोइट ने, कि जब कोई टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट से निकलकर ह्यूमन हैबिटेट में आ जाता है तो वो उस रेजिडेंशियल एरिया में घरों के चारों तरफ घूमता है, बहुत तेज आवाज में दहाड़ता है। उसके जो बड़े बड़े क्लॉज हैं, उसके बड़े बड़े पंजे और उसके शार्प वाइट टीथ देखकर जो विलेज के लोग हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो थर्ड स्टेंजा में अगर हम देखें तो थर्ड स्टेंजा में क्या बताया गया है, पोइट ने क्या बताई है, रियल पावर ऑफ टाइगर, रियल स्ट्रेंथ, रियल पावर ऑफ टाइगर, ये इनके नेचुरल फिनोमेना है। मतलब ठीक है, टाइगर ऐसे ही होते हैं, ये उनका नेचुरल फिनोमेना है, जो फर्स्ट स्टेंजा में था वो नहीं है। बट he is locked in a concrete cell. His strength behind bars is stalking the length of his cage, ignoring visitor. Now stalking again, walking. ठीक है, walking from to and fro, इधर से उधर जाना, घूमना। अब यहाँ पे बता रहे हैं, अब फोर्थ स्टेंजा में फिर से हम कहाँ पे आ गए हैं, केज। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वो केज्ड टाइगर की बात कर रहे हैं, जो टाइगर कहाँ फंसा हुआ है, पिंजरे में है। वो बता रहे हैं कि लेकिन अब क्या है, ही अगेन यहाँ पे किसके लिए आया है, टाइगर के लिए। वो कह रहे हैं अब वो एक कॉन्क्रीट सेल की केज में लॉक्ड है। कॉन्क्रीट मीन्स जिससे घर बनाते हैं, लाइक द मिक्सचर ऑफ द स्टोन, ऑफ सैंड, ऑफ सीमेंट, ठीक है, देन वाटर, देन इट इज मिक्स्ड, इट इज अ सब्सटेंस। ठीक है, जिस तरह का एक तरह का पेस्ट बन जाता है, आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, फिर उसको लगाते हैं, दीवारों पर लगाते हैं, उससे सीलिंग बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, और बाद में वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट वॉल। ठीक है, सीमेंटेड या स्टोन ब्रिक्स की जो बनी हुई वॉल होती है, दैट इज कॉल्ड। तो ये जो सेल है, यहाँ पे सेल का मतलब क्या है, ट्रैप या केज। ये जिस केज में है वो किसका बना हुआ है, वो कॉन्क्रीट का बना हुआ है, और वो वहां पर बंद है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पार है, अभी वो बार के पीछे है। केज के जो बार्स हैं, जो आयरन बार्स हैं, उसके पीछे टाइगर की स्ट्रेंथ ट्रैप हो गई है। वो कहाँ जा रहा है, लेंथ ऑफ हिज केज। ये केज जितना बड़ा है, अगर केज इतना बड़ा है तो वो क्या कर रहा है, वो आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, बस उसका इतना ही क्या है, एरिया है, स्पेस है। तो स्टॉकिंग लेंथ, लेंथ का मतलब पहले वो इधर जाता है और उसके बाद वापस से इधर आता है। तो वो एक तरह से जो लेंथ है केज की वो नाप रहा है, क्योंकि उसके पार वो नहीं जा सकता। केज बहुत छोटा है, उसके फॉरेस्ट की तरह बड़ा नहीं है, इसीलिए वो कन्फाइंड है, वो लिमिटेड है वहीं आगे पीछे घूमने के लिए, और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। विजिटर्स का मतलब क्या हुआ, विजिटर्स कहाँ पे है, इन द जू। केज कहाँ पे है, अब देखो ये जो टाइगर है जो केज्ड है, तो केज कहाँ पे होगा, घर में तो हम रख नहीं सकते, तो जू में है। दैट्स वाई द नेम ऑफ द पोम इज अ टाइगर इन द जू। जो लोग देखने आए हैं जू में, जो केज में टाइगर बंद है, वो उनको इग्नोर कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ही वॉज जस्ट रिगार्डिंग हिमसेल्फ एज एन आइटम ऑफ द एंटरटेनमेंट फॉर दैम, एंड विजिटर्स जो है उसको टीज कर रहे हैं। उसकी जो रियल पार है अभी वो छुपी हुई है, वो बार के पीछे है। कहाँ है वो, कॉन्क्रीट सेल में है। आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर। स्टैंजा नंबर 5,
He hears the last voice of the night, the patrolling cars, the end stares with the brilliant eyes at the brilliant stars. Now यहाँ पे वो एक लास्ट वॉइस सुनता है रात को, जो पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग आप बोल सकते हो मूविंग कार्स, या आप बोल सकते हो कार ऑन विजिलेंस, ठीक है, कार्स ऑन विजिलेंस। ये कौन सी कार है? ये वो कार है जहाँ पे रात को जो पुलिस ड्यूटी देती है, ठीक है, उनका सायरन बजता रहता है और वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। मीन्स दे आर गार्डिंग, दे आर जस्ट टेकिंग केयर और कीपिंग एन आई ऑन एनी अनसोशल थिंग, ठीक है, वो जो पेट्रोलिंग वाली कार होती है। अभी उसमें आवाज़ निकलती है, उनका जो सायरन होता है उसमें आवाज़ निकलती रहती है, इस तरह की आवाज़ निकलती रहती है। तो अब वो बताया जा रहा है यहाँ पे ही अगेन टाइगर क्या सोचता है, टाइगर रात हो गई है, अभी भी वो केज में है, वो जू में है, तो जू के पास जो जितनी भी रोड है, स्ट्रीट है, वहां पे पुलिस की पेट्रोलिंग कार जो है वो विजिट कर रही है, ठीक है। किसकी है पेट्रोलिंग कार? पुलिस कार है जो पेट्रोलिंग कर रही है, मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, और उसका जो सायरन है उसकी आवाज उसको सुनाई देती है, वो उसकी लास्ट साउंड है पूरे दिन की जो उसको सुनाई देती है। मतलब वो बाहर जा नहीं सकता, बाहर की दुनिया को देख नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, लेकिन बाहर से जो भी आवाजें आ रही हैं वो उनको तो सुन सकता है। तो यहाँ पर किसकी आवाज़ सुनता है? वो रात को जो पेट्रोलिंग कार होती हैं जो घूमती हैं उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है। इसके अलावा और वो क्या कर सकता है? वो देख सकता है किसको? अपनी ब्रिलियंट आईज से वो स्टार्स को देख सकता है। स्टेयर इज कॉल्ड लुक्स। वो ऊपर देख सकता है, उसकी जो चमकती हुई आंखें हैं उससे वो चमकते हुए जो स्टार्स हैं उनको देखता है। तो वो केज में है, वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आवाज़ों को, बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है, अपना आंखों को ऊपर करके आसमान में जो तारे चमक रहे हैं वो अपनी चमकती हुई आंखों से देख सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो टाइगर है वो कितना हेल्पलेस फील कर रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि वो एक जू में ट्रैप कर दिया गया है। अब इसकी थीम देखने से पहले हम इसकी पोइटिक डिवाइस डिस्कस करते हैं। आई होप ये जो स्टैंजास थे वो आपको क्लियर हो गए हैं, कहाँ पे कैसे उन्होंने बताया। फर्स्ट स्टैंजा केस से स्टार्ट हुआ है, सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में उसकी फ्रीडम को बताया गया है जो टाइगर फॉरेस्ट में है। अगेन जो हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा होता है वो टाइगर की हेल्पलेसनेस को शो कर रहा है। अब हम स्टैंजा नंबर 1 की पोइटिक डिवाइस देखते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम है इसकी ए बी ए बी ए बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी। ये राइम स्कीम पूरी जो पोम है उसमें यही राइम स्कीम चली है। स्ट्राइप, केज, क्वाइट, रेज, तो यहाँ पे आ गया ए बी सी बी, ठीक है। ये पूरी राइम स्कीम पूरी पोम में ये चली है। सबसे फर्स्ट है वो है आपकी पोएट्रिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या है? द पोइट रिफर्स द टाइगर ही एंड नॉट इज, दस द टाइगर हैज बीन पर्सोनिफाइड। टाइगर को क्या बोला है? हर स्टेंजा में उन्होंने टाइगर को ही बोला है, और टाइगर इज रिगार्डेड एज नॉन लिविंग थिंग इन लिटरेचर, तो हम बोल सकते हैं कि पोइट ने इसको पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट है मेटाफोर। नाउ मेटाफोर, द पॉज ऑफ द टाइगर हैव बीन कंपेयर्ड विद वेलवेट। जैसे वेलवेट सॉफ्ट होता है वैसे ही टाइगर के जो पॉज है उनको सॉफ्ट बताया गया है, तो यहाँ पे क्या है? मेटाफोर। नेक्स्ट इज इंजैबमेंट। द सेंटेंस आर बीइंग कंटिन्यूड टू नेक्स्ट लाइन। कोई भी फुल स्टॉप या कॉमा या सेमीकोलन नहीं है यहाँ पर, देखो फर्स्ट लाइन के बाद, तो यहाँ इन दोनों लाइन में यानी कि फर्स्ट लाइन के आगे आप क्या लिखोगे? इंजैबमेंट, जब कॉन्टिन्यूस लाइन आती है। नेक्स्ट इज इमेजरी। The poet has given detailed visual description about the tiger. He stalks in his vivid stripes. जब भी आपकी कोई भी यहाँ पे क्या है? विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपकी जो माइंड है वो इमेज बनाने लगती है कि हाँ टाइगर जो है वो टहल रहा है। तो थ्रू आउट द पोएम हम बोल सकते हैं, थ्रू आउट द पोएम इमेजरी लिटरेरी डिवाइस है। नेक्स्ट इज एसोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड आई, ठीक है। आई का रिपीटेशन देखो यहाँ पे, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इस लाइन में क्या है? इस लाइन में आई का रिपीटेशन है, ये लाइन है टेक्स्ट से। इन हिज क्वाइट रेज, यह यहाँ पर ये 3 बार रिपीटेशन है। नेक्स्ट आती है आपकी लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंस। देयर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एस, ठीक है। प्रोमिनेंट कॉन्सोनेंस का मतलब होता है जब साउंड आती है, ठीक है, बार बार जो साउंड आती है वो स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो इस तरह की जो साउंड आ रही है, ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंस को शो करती है। ये लिटरेरी डिवाइस कौन सी है यहाँ पे?
कॉन्सोनेंट्स. नाउ स्टॉक्स इन इट विपिड स्ट्राइप्स, ये कॉन्सोनेंट्स लिटरेरी डिवाइस आ जाती है हमारी. नेक्स्ट आती है ऑक्सीमोरॉन. द पोइट हैज यूज्ड टू वर्ड विच आर अपोजिट इन द मीनिंग, क्वाइट एंड इन रेज. क्वाइट का मतलब क्या हुआ? शांत. रेज का मतलब क्या हुआ? इन एंगर. ठीक है, तो रेज क्या हुआ? एंग्री. और क्वाइट का मतलब क्या हुआ? काम, पीसफुल. तो ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीमोरन. जहाँ पे टू वर्ड्स कैसे होते हैं? बिल्कुल अपोजिट, वहाँ पे ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस होती है. Next is synecdoche. Here the poet has used the phrase vivid stripe for the whole body of the tiger. Now synecdoche में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हो बट उसका मतलब होता है बहुत बड़ा. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो मीन्स very small and that is regarding or that is telling about the whole. ठीक है, उसको बोलते हैं synecdoche. सो वी कैन से पार्ट टू रिप्रेजेंट एट अ होल, मतलब छोटी सी चीज़ जो पूरी यहाँ पे स्ट्राइप, सिर्फ स्ट्राइप से अगर आप बोलो तो कौन सा एनिमल आ जाता है? होल बॉडी ऑफ अ टाइगर. टाइगर की इमेज आ जाती है. तो ये हमारे फर्स्ट स्टेंजा की थी. अब सेकेंड स्टेंजा की देखते हैं लिटरेरी डिवाइस. फर्स्ट इज इंजैबमेंट. यहाँ पे कौन सी लाइन में है? ये देखो, ये दो लाइन आ रही है जहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस होगी आपकी इंजैबमेंट. नेक्स्ट देखो इज एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर. ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन है. कॉन्सोनेंट लेटर आया है यहाँ पर, दैट वर्ड इज प्लम्प एंड पास. ठीक है, प्लम्प एंड पास, पी का रिपीटेशन हुआ है यहाँ पर, एलिटरेशन होगा. इमेजरी थ्रू आउट पोम में है, मैं बता चुकी हूँ आपको. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर एक्टिविटीज लाइक लर्किंग शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. जैसे जैसे ये फ्रेज आते हैं हमारी, इनकी इमेज हम विजुअलाइज करते जाते हैं, तो यहाँ पर इमेजरी लिटरेरी डिवाइस होगी. नेक्स्ट देखो थर्ड स्टेंजा की पोएटिक डिवाइस. अगैन वी हैव इंजैबमेंट हियर इन द लाइन ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड द हाउस एट द जंगल एज. नो पंक्चुएशन मार्क. Next is onomatopoeia. Now onomatopoeia is telling about the word snarling which denotes the aggressiveness sound made by the tiger. तो यहाँ पे जितने भी साउंड वर्ड होते हैं वो आते हैं onomatopoeia में, जैसे कि धम, स्ट्रैच, वाव, ओके, थड, इस तरह की जो साउंड होती है. सेम यहाँ पे कौन सी साउंड आई है? स्नार्लिंग. स्नार्लिंग इज अ रोरिंग साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइगर. तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगी? onomatopoeia. नेक्स्ट आता है आपका एसोनेंस. लिटरेरी डिवाइस है रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड. अब यहाँ पे वॉल साउंड आई का रिपीटेशन हुआ है, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. ये आई का रिपीटेशन यहाँ पे हुआ है. नेक्स्ट इज ओ का रिपीटेशन हुआ है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउस. ओ रिपीट हुआ है यहाँ पर बार बार, इसका रिपीटेशन हो गया. नेक्स्ट आता है आपका एस, ये होता है हमारा कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंट. प्रोमिनेंट साउंड आ रही है एस की यहाँ पर, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रही है ना, हिज फैंग्स क्लॉज. जो लास्ट में, अगर ये स्टार्टिंग में होते हैं तो एलिटरेशन होता है, लास्ट में अगर इनकी साउंड आती है तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस होता है कॉन्सोनेंस. तो ये हुआ हमारा स्टैंजा नंबर 3. नाउ स्टैंजा नंबर 4. फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है. कैसे फॉर्म में? ही प्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट आता है आपका एजोनेंस. देयर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ वॉल साउंड ई. ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल. इसमें रिपीटेशन है आपका ई का, काफी बार है रिपीटेशन, तो यहाँ पे होगा एसोनेंस. नेक्स्ट है आपका कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस. प्रोमिनेंट साउंड ऑफ एज, हिज, स्ट्रेंथ, देन बिहाइंड बार्स. ठीक है, ये बार बार साउंड आ रहा है एस का प्रोमिनेंट, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस होगा. नेक्स्ट है आपका एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ लेटर ए एट द स्टार्ट ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ब बिहाइंड द बार्स. देयर इज रिपीटेशन ऑफ बी. रिपीटेशन ऑफ ए लेटर स्टार्ट क्लोजली प्लेस्ड वर्ड बिहाइंड बार्स. इट इज नॉट बिहाइंड बार्स, यहाँ पे ए नहीं है, ये बी है. ठीक है, बिकॉज ये क्या होता है, ये है लेटर बी. ठीक है, यहाँ पे बी का साउंड है, तभी यहाँ पे एलिटरेशन होगा, बिकॉज एलिटरेशन जो होता है दैट इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर. बिहाइंड बार्स, ये देखो बिहाइंड बार्स में बी और बी का रिपीटेशन है, एलिटरेशन होगा. रिपीटेशन ऑफ लेटर बी है यहाँ पर, ये इसको मैं काट देती हूँ. ठीक है, लेटर बी इन द स्टार्ट ऑफ द क्लोजली. तो यहाँ पे ये आप लिख लो, ये इट इज द रिपीटेशन ऑफ बी. ये यहाँ से मैंने कट कर दिया, लेटर एट द स्टार्ट ऑफ द दैट इज बी बिहाइंड द बार्स. ठीक है, एलिटरेशन हो जाएगा.
नेक्स्ट देखो स्टैंजा 5 की सबसे पहले है इंजैबमेंट, यहाँ पे 2 लाइनों में इंजैबमेंट है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. नेक्स्ट इज एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर, दैट इज एच. यहाँ पर आया है ही, इसमें एच आया है, हियर्स इसमें एच आया है. नेक्स्ट है आपका एसोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड आई इन द लाइन विद हिज ब्रिलियंट. ये आई काफी बार आई का यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है. नेक्स्ट आता है आपका रिपीटेशन. नाउ रिपीटेशन मीन्स व्हेन द सेम वर्ड इज रिपीटेड इन सेम लाइन. अब यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो एंड से लेके स्टार तक हम इसको वन लाइन कंसिडरेट करेंगे, और यहाँ पे ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट 2 बार आया है, इसीलिए यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस होगा रिपीटेशन. आई होप इट इज क्लियर. अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी थीम. ह्यूमन आर क्रूअल फॉर द एंटरटेनमेंट एंड सेल्फिश रीजन, दे टेक अवे द फ्रीडम ऑफ लिविंग बीइंग. तो यहाँ पर फर्स्ट थीम हो जाती है हमारी एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट किसका हो रहा है, विजिटर्स का हो रहा है जो जू में आ रहे हैं. नेक्स्ट हो जाती है हमारी सेल्फिश. सेल्फिश का मतलब जो लोग हैं जिन्होंने ट्रैप किया है टाइगर को अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, पैसे कमाने के लिए, टू अर्न द मनी, तो यहाँ पे हमारे उन लोगों को यहाँ सब्जेक्ट किया गया है. नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम. फ्रीडम किसके फॉर्म में आया है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ. एंटरटेनमेंट किसके लिए है, विजिटर्स के लिए जो जू विजिट करने आए हैं. सेल्फिश क्या है, पीपल, मैं ऐसे लिख देती हूँ, टू अर्न द मनी. ठीक है, फॉर द पर्पस टू अर्न द मनी. तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट थीम. नेक्स्ट होती है हमारी फ्रीडम. फ्रीडम किसके लिए आया है, टाइगर के लिए, जिसके पास फ्रीडम नहीं है. नेक्स्ट आता है आपका द स्टोरी शोज दैट हार्श रियलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस बीइंग अनकाइंड टू द एनिमल्स. तो यहाँ पे हार्श रियलिटी देखने को मिलती है हमको यहाँ पर टीम में, किसकी, ह्यूमन बीइंग की, जो अनकाइंड है, कैसे, एनिमल्स के लिए उनको ट्रैप में रखा है. Animals stay happy in their own habitat. Tamed animal will never have the zeal like the free animals as in the jungle. जो एनिमल्स हैं उनको अच्छा लगता है जब वो अपने खुद के हैबिटेट में होते हैं. अगर उनको टेम किया जाता है, टेम इज कॉल्ड डोमेस्टिकेट किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, उनको पैट बना के पिंजरे में रखा जाता है, वो कभी भी हैप्पी फील नहीं करेंगे, फील फ्री नहीं करेंगे. The author feels the suppressed tone of the disgust, pain and roar of the tiger. यहाँ पे जो expressions हैं टाइगर के वो बताए गए हैं कि जो पोइट को फील हो रहे हैं. suppressed जिसको दबाया गया है, और वो है disgust के फॉर्म में, पेन के फॉर्म में, और roar के फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो अपना एंगर शो कर रहा है. Moving towards the extract based question, he should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole. अब यहाँ पे आपका शायद एक वन लाइन इज मिसिंग ओवर हियर. Where plump deer pass. Now who is he here? यहाँ पे ही किसके लिए बोला गया है, टाइगर के लिए ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज वेयर शुड बी ही बी लर्किंग. कहाँ पे वो लर्क कर रहा है, इन द लॉन्ग ग्रास. लॉन्ग ग्रास के पीछे वो लर्क कर रहा है, हाइड हो रहा है. वेयर शुड ही बी स्लाइडिंग, किस तरफ स्लाइड कर रहा है, टुवर्ड्स द लॉन्ग ग्रास. हु वुड पास थ्रू द वाटर होल, कौन पास करेगा वाटर होल से, plump deer, they will pass through the water hole. Next देखो, but he is locked in a concrete cell, is the strength behind the bars is stalking the length of his cage, ignoring visitors. What does the phrase is his strength behind the bars suggest? ये जो फ्रेज है इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है the power, the strength, the real identity of the tiger is trapped in the cage. Why does the tiger ignore the visitor? The tiger ignore the visitor because he is feeling very detached. He is feeling a quiet rage. ठीक है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है, just because of being trapped in the cage. What is the tiger doing in the cage? क्या कर रहा है tiger? Is stalking the length of his cage. What does the expression stalking the length of his cage imply? Stalking the length of the cage means the tiger is walking to and fro in the cage. इधर से उधर वो घूम रहा है केज में, क्योंकि वहां पर उसके घूमने के लिए बस इतनी ही जगह है. शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखो. Why should the tiger snarl around houses at the edge of the forest? The tiger should snarl around the houses at the edge of the forest because of following reason. Firstly, the villagers will not disturb the peace of the forest. Secondly, they will not kill the animals for money and just for fun.
तो यहाँ पे पोइट के अकॉर्डिंग जो टाइगर है अगर वो हैबिटेट में आ जाता है ह्यूमंस के अपने हैबिटेट से निकलकर, तो ही शुड मेक अ राउंड, एक रोरिंग साउंड उसको निकालना चाहिए, जिससे विलेजर्स को पता चल जाए कि हाँ यू आर नॉट अलाउड टू कम इन देयर हैबिटेट, उनको जंगल में आना अलाउ नहीं है, उनका हंट, उनका शिकार करना ज़रूरी नहीं है, और वो सिर्फ अपने पैसे के लिए उनको नहीं मार सकते हैं, और वो उनकी जो पीस है, पीसफुल लाइफ है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो पोइट ने एक तरह से ये सजेस्ट किया है कि टाइगर को ह्यूमन के हैबिटेट में आना चाहिए और उनको अपनी पावर शो करनी चाहिए। लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग कमांड। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। Everyone loves freedom and does not want to live in confinement. Similarly, the tiger also launched for freedom. He was so fed up being caged that he even ignored the visitors. He took to and fro steps in the cages as if trying to just while away the time. The tiger wanted to escape this captivity. तो सबको ही फ्रीडम प्यारी होती है, जितने लोग होते हैं। कौन रहना चाहता है कन्फाइनमेंट में? कन्फाइनमेंट आप बोल सकते हो जेल में, ठीक है, ट्रैप में कोई भी रहना नहीं चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जो टाइगर है, टाइगर को भी फ्रीडम चाहिए, वो जंगल में जाना चाहता है, उसको भी जो केज में रहते रहते वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, ट्रबल्ड हो गया है, और वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है। वो केज में सिर्फ आगे पीछे जा सकता है क्योंकि उसका एरिया इतना ही है, और वो इस टाइम से, इस केज से बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो टाइगर है वो वहाँ से बचना चाहता है, उस कैप्टिविटी से, उस जेल से, ठीक है, उसको जिस कन्फाइनमेंट में रखा गया है उससे वो बाहर आना चाहता है। God has made all living beings equally, and thus the animals too have the right to freedom. It is their right to enjoy their natural habitat, the forest, and run freely in the wild. We should thus respect the freedom and should not पुट दैम इन द जू। जो गॉड है उन्होंने सभी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्रीचर्स हैं, सबको बराबर बनाया है। सबका ही ये हक है, राइट है कि उनको फ्रीडम मिले, वो अपने खुद के हैबिटेट में इंजॉय कर सकें, वो अपने हैबिटेट में, उनका जो टाइगर का हैबिटेट है वो है फॉरेस्ट, जहाँ पे वो रह सकें, भाग सकें, दौड़ सकें, और हमें इस फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको हमको जू में ट्रैप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइगर के बारे में बताया है, उसके बाद पोइट्स की फीलिंग, यहाँ पे आप अपनी ओपिनियन भी डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज राइट टू कन्फाइन वाइल्ड एनिमल्स इनटू केजेस, व्हाई और वाइट नॉट? यहाँ पे पोइट पूछ रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो वाइल्ड एनिमल है उनको रखना चाहिए, अगर रखना चाहिए तो क्यों और क्यों नहीं? Wild animals are meant to live in the wild. They are not meant to live in the cage displayed in the zoos. We are all know that the majestic species of the tiger is on the verge of extinction. They are not meant to live in a life of confinement. They also have the right to freedom like all other living beings. Confinement leads to depression and misery. Moreover, their offspring lose the hunting capabilities as they are not trained to hunt in the wild. As a result, they would not be able to feed themselves. Furthermore, confining wild animals disturb the whole ecological balance. We should thus let the animals run free in the wild. तो जो वाइल्ड एनिमल है उनका भी हक है कि वो वाइल्ड लाइफ में ही रहे, जहाँ के हैं वो वहीं रहे, उनको केज में, जू में डिस्प्ले करने के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की मजेस्टिक, एक तरह की मैजिक स्पेशीज है, स्पेशीज आप बोल सकते हो, ब्रीड है टाइगर की, जो कहाँ पे है, जो एक्सटेंशन, वर्ज आप बोल सकते हो, लिमिट या एज, ठीक है, एज पर है, कहाँ पे है, ये खत्म होने के एज पर है। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हुआ? फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड, ठीक है, तो बिल्कुल फिनिश होने वाली है ये। इनका ये मतलब नहीं है कि ये इनको कन्फाइंड में या लाइफ को कन्फाइंड में, इनकी लाइफ को कन्फाइंड में बांध कर रखा जाए। इनको भी होता है, सैड होती है, इनकी भी मिजरी होती है, मतलब इनको भी दुख होता है, ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन इनको भी दुख होता है, इनको भी इस तरह की ट्रबल होती है, डिफ़िकल्टी होती है। और जब ये ऑफ स्प्रिंग लूज हंटिंग कैपेबिलिटीज़, मतलब अगर जब इनको केज में रखा जाता है तो इनकी जो हंटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि इनको हंटिंग के लिए ट्रेन नहीं किया जाता है। इनको सर्कस में अलग अलग एक्टिविटीज़, तमाशा
दिखाने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो ये जो होते हैं वो नहीं एबल होते हैं अपने आप को फीड करने के। मतलब एक टाइगर का एक बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वो हंट करेगा, अपना प्रे को अटैक करेगा, उसको पकड़ेगा और फिर खाएगा। लेकिन जो टाइगर शुरू से ही केज में रहा है उसमें हंटिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो उसको सिखाया जाएगा। अगर उसको बाहर छोड़ दिया जाएगा तो वो अपने लिए खाना अरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं है। तो और जू में रहते वो इसके लिए बिल्कुल अनट्रेंड हो गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो केज में टाइगर होते हैं वो अपने आप को नहीं खिला सकते क्योंकि उनमें हंटिंग पावर नहीं होती है, इसीलिए हमको वाइल्ड एनिमल्स को नहीं रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ वो बताते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को केज में रखने से अगर उनके नेचुरल हैबिटेट में वो नहीं होंगे तो इससे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जो अर्थ का जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए जो एनिमल्स हैं, स्पेशली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको वाइल्ड हैबिटेट में छोड़ना चाहिए, ना कि उनको केज में ट्रैप करना चाहिए। अब हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स नहीं है, हाँ, बट न्यू वोकैबुलरी है। एंड एट द एंड दिस इज द समरी ऑफ दिस पोम. Go through the summary, go through the word meanings, try to mark the literary device, all the poetic devices yourself, try to explain, और इसके थोड़े से और कॉम्प्रिहेंशन जो भी इसमें स्टैंजास छूट गए हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। विद दिस वी हैव एंडेड दिस पोम हियर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग नेक्स्ट थिंग फॉर यू। टिल देन टेक केयर।